Clarity? Yes? Yes, ma'am. Okay. I am showing you PDF. Now we are sharing the PDF with you. Is it visible? Class 12, Yes. is it visible? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, in last classes, we already discussed about the definition of bipolarity. We have already discussed about Union of Soviet Socialist Republic. Yes. What are the features of Soviet system? We already discussed about these topics, and the disadvantages, or we can say that the causes of disintegration of Soviet Union. हम ये सब पढ़ चुके हैं. सोवियत यूनियन के जितने भी कॉजेस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. इवन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द गोरबाचेव. यस, हमने गोरबाचेव के बारे में भी डिस्कस कर लिया था. Yes, ma'am. हाँ जी. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप कर सकती हूँ जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं. मैंने तो पढ़ा दिया, बट आप कितना पढ़ रहे हैं. पूछू क्वेश्चंस? Yes, ma'am. वेरी गुड. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिर्फ जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है. आप लोगों ने फिर वीडियो ऑफ कर लिया. स्टूडेंट्स, just open your video. Neha, Mannat, please open your video, all of you. Don't close your video. Each and every student, please listen me carefully. I want to see your faces. It's okay? आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे इसको क्लोज. आप में से किसी को कोई क्वेश्चन तो पुट अप नहीं करना है ना? No, ma'am. Okay, fine. Now my first question. और आप अपना वीडियो ऑन कीजिए जिससे कि मुझे पता रहे आप कितना बता रहे हैं, मुझे कितना आप लोगों को समझ में आया है. सो ओपन योर वीडियो. अगर आप लोग अपना वीडियो ओपन रखेंगे तो मुझे भी डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. My first question is, how many republics were there in Soviet Union? Just only raise your hand. Don't speak up. Raise your hand. How many republics were there in Soviet Union? Only Chetna. This is wrong. मैंने सबको पढ़ाया है, सबको आना चाहिए आंसर. वेरी गुड. चेतना, उन्नति, आस्था, वेरी गुड. और किसको आता है जल्दी से? चैट बॉक्स. अच्छा, चैट बॉक्स होगा नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं. नेहा, गिव द रिस्पॉन्स. नेहा, नेहा स्पीकर बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही. नेहा. ओके, चेतना. 15. Yes, there were 15 republics in Soviet Union. Very nice. Next question. Next question मैं पूछूंगी अक्षिका से. अक्षिका, Akshika, are you ready? Yes, ma'am. Okay. What does USSR stands for? It means what is the full definition of USSR? ये abbreviation है, आपको full form बतानी है. Union Soviet Socialist Republic. Very good. Nice one. Good one. Next question. Ma'am, Union of Soviet Socialist Republic. यही तो बोला है उसने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. नहीं मैम, उसने यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऐसा कुछ बोला. अच्छा, उसने ऑफ छोड़ दिया, कोई बात नहीं. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ओके, नाउ इट्स ओके चेतना. यस मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम विकास. विकास. Yes, ma'am. Yes, my question is, mention the name of Eastern Alliance led by Soviet Union. Mention the name of Eastern Alliance led by Soviet Union. नहीं आता. अरे विकास, ये तो बहुत इजी है. Who wants to give the response? Astha. Ma'am, Warsaw Pact. Yes, the Warsaw Pact, founded in 1955, and its main task was to mobilize the countries involved in Europe. विकास, समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. जो वर्सो पैक्ट था
वो पाया गया था 1955 में वो स्टार्ट हुआ था एंड इट्स मेन टास्क, जो उसका मेन टास्क था वो क्या था? टू मोबिलाइज द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन यूरोप। नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी और उसका आंसर याशिका धीरवानी देंगे। याशिका, ओपन योर वीडियो फर्स्ट। याशिका, वेरी गुड, नाइस वन। अब क्वेश्चन है याशिका आपसे, which party was the center of the Soviet political system? Which party was the center of the Soviet political system? Yashika? Meenakshi? Meenakshi, do you know which party was the center of the Soviet political system? No, ma'am. No. Oh no. Muskan? Muskan? This is very surprise for me because in first chapter we already discussed all these things. Which party was the center of Soviet political system? Communist Party. Very good, Muskan. Very nice, beta. Next question. Next question बहुत अच्छा है, बहुत important है, जिसको आता है फटाफट से raise करना अपना hand. The Russian Revolution 1917 was against whom? The Russian Revolution 1917 was against whom? Yes, Mannat. मैम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट किया था। Yes, opposed to capitalism. Very good, Mannat. Nice one. चलिए, आज के लिए sufficient है इतना चेतना? नहीं मैम, और पूछ लो। और पूछ लो। अगर मैं क्वेश्चंस पूछती रहूंगी तो फिर चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा हमारा। मैम 4-5 और पूछ लो। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं पूछने के लिए, पर मैं सोच रही हूँ एक बार चैप्टर और कंप्लीट करवा दूं। चलो एक इजी सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? मैम आप अभी तक मैम ये 1 वर्ड वाले मतलब 1 मार्क्स वाले पूछ रहे थे ना? बीच में मैंने कहीं 1 पूछे हैं, कहीं पर 2 लाइंस वाले भी हैं, कहीं 4 लाइंस वाले भी हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मन्नत, यस स्पीक अप बेटा। मैम PT1 के चैप्टर्स जो हैं वो चैलेंजेस टू द नेशन और ये कोल्ड वॉर और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दीज 3 चैप्टर्स। मैम इसके अलावा कोई ऐड थोड़ी होगा? नहीं नहीं, 3 चैप्टर का सफिशिएंट है मन्नत। चाहे मैं सिलेबस आगे जुलाई के एंड में होंगे क्या? चाहे कभी भी हो, मैं 3 चैप्टर से ज्यादा नहीं दूंगी चेतना, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, चैप्टर मैं 3 दूंगी, चाहे पढ़ा दूंगी आगे, लेकिन दूंगी बस यही 3 चैप्टर्स। ओके उन्नति, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम इसमें चैप्टर नंबर 3 का मतलब 3 डिलीट तो हो चुका है, बट इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 2 में इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल इसमें है, वो मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। ओके मैम। ओके हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि जो सोवियत यूनियन था उसके डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या रहा, और जो मिखेल गोर्बाचेव थे वो कौन थे, और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को रिफॉर्म किया, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और आई एम कि आप लोगों ने जो मैंने होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चंस दिए थे वो भी आप लोग कर चुके होंगे। यस, यू हैव डन? Yes or no? Fine. तो आज हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का जब इंटीग्रेशन हुआ उस टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे। यहाँ आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। इज इट विजिबल? यस मैम। फाइन, यहाँ पर एक सेकेंड वर्ल्ड का नाम है, सेकेंड वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड वर्ल्ड? क्या था सेकेंड वर्ल्ड? मैम यूएसएसआर। USSR is known as the second world. यदि क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, what do you mean by second world, तो आप क्या लिखोगे? Can you explain me this? Anybody else जो भी करना चाहता है explain. Here is a question. What do you mean by second world? Second world क्या था? What do you mean by क्या है? किसको आप second world कहते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, not 1 मार्क्स क्वेश्चन. This is 2 मार्क्स क्वेश्चन. Yes, Mannat. कम्युनिस्ट ब्लॉक की कंट्रीज को कहा जाता था। ओके चेतना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो दिस इज सफिशिएंट आंसर? एग्जाम्पल के साथ दे। हाँ मन्नत आप बोलिए।
the Eastern countries that supported the ideology of Soviet Union and followed the certain pacts, as well as they were the part of the Warsaw Pact, were called as the Second World. Okay. Yes, Neha, you want to say? You want to tell, beta? Neha? Ma'am, we can give examples like Soviet Union, China, Cuba. These all will be come in Second World. Yes, ma'am. Okay. Neha? Neha, you are not audible. It's okay, Manat and Chaitna, you are right. After the Second World War, the Eastern European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR. किसके कंट्रोल में आ गए थे? USSR के कंट्रोल में आ गए थे. And these political और economical system जो था, जो कंट्री थे सारे जो USSR में आ गए थे, जो सारे जो कंट्रीज थे, वो जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उनको अपना मॉडल मान रहे थे, वो सारे के सारे कंट्रीज इस ग्रुप में आते हैं और इस ग्रुप को हम सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं. फर्स्ट जो वर्ल्ड था वो आपका यूएसए से रिलेटेड था. सेकेंड वर्ल्ड जो है उसमें जितने भी यूएसएसआर में कंट्रीज थे वो. और थर्ड वर्ल्ड क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड? The countries that wanted to be free and have their own sovereignty that joined the NAM. Yes, that is known as a third world. क्लियर? सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड. इंडिया जो है वो किस में आएगा? NAM. नैम में. तो इट मींस दैट इज नोन एज द थर्ड वर्ल्ड. क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस टॉपिक में? Fine. Here we are discussing about the consequences of disintegration of USSR. USSR जब disintegrate हो गया तो उसके consequences क्या है? Consequences का मतलब उसके रिजल्ट क्या निकले? Consequence का मतलब यही होता है ना, रिजल्ट. Yes. तो फर्स्ट रिजल्ट जो निकला दैट वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन. जब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो सबसे बड़ा रिजल्ट जो निकला कि कोल्ड वॉर जो थी वो क्या हो गई, वो पूरी तरह से खत्म हो गई. जो आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट था, किस किस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. दैट विल बी द whether the socialist system was over. उसने ये इंडिकेट किया कि जो सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है एंड ऑफ द आर्म्स रेस. आर्म रेस भी जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई. आर्म रेस किस किस के बीच में थी? आर्म रेस किस किस के बीच में थी बच्चों? USA and Soviet. USSR. यस, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जितनी भी आर्म रेस थी उसका स्टॉपेज वहीं लग गया. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट इज एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वॉर. आइडियोलॉजी जो वॉर थी वो खत्म हो गई. आफ्टर दैट द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर. अब सोल सुपर पावर कौन सा कंट्री हो गया? यूएसए. एक पॉइंट हम और डाल सकते हैं कि रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. यहाँ पर रशिया जो था वो यूएसएसआर का क्या बन गया? सक्सेसर बन गया. यस. Yes, ma'am. एंड द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक का एंड हो गया और द इमर्जेंस ऑफ 15 न्यू कंट्रीज. और 15 जो नए कंट्री थे, जो 15 जो नए कंट्रीज थे वो सामने आ गए. द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज and who had their own independent aspiration and choice. उनकी चॉइस थी कि हम इंडिपेंडेंट रहें और साथ साथ में हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो हमेशा के लिए रहे. And some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and become the part of NATO. और वो किसके पार्ट बन गए? नाटो के पार्ट बन गए. अब कौन रीड करेगा इसको? Who wants to read the हाँ करिए. Consequences of disintegration of USSR. Consequences of the Second World of the Soviet Union. First, the collapse of the Second World of the Soviet Union. Second, end of the Cold War, end of the arms race, end of the ideology war. The US became the sole superpower. Yes. Now just read the chapter, beta. Open the page number 23.
बुक सबके पास है, आई होप सो. आस्था, रीड पेज नंबर 23. आस्था, Yes, ma'am. Ma'am, please. और आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन भी करेंगे आप लोग. हैंड टू हैंड आप अंडरलाइन करते जाएंगे. बुक में जितने भी पॉइंट्स है मैंने अभी आपको बताए थे वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन हो जाने चाहिए. यस आस्था. Consequences of disintegration, the collapse of the Second World War of Soviet Union and the socialist system in the Eastern Europe had profound consequences for world politics. Let us note here three broad kinds of enduring changes that resulted from it. Each of these had number of effects that we cannot list here. First of all, it meant at the end of Cold War confrontations, the ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. Since Because this that was the first point. It means the end of the Cold War confrontation. That was first point जो आप अपनी कॉपी एग्जाम कॉपी में लिख कर आएंगे. Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to existence of military blocs, the end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace. Yes. Now Mannat, second point. Mannat, start with second point. Mannat Taneja. May I? Yes, Muskan. Second, power relations in world politics changed, and therefore the relative influence of ideas and institutions also changed. The end of the Cold War left open only two possibilities. Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system. Thereby bringing in a multipolar system where no one power can dominate. As Do it you turned out, listen, Muskan? Just wait, beta. Can you define about the unipolar, multipolar and bipolar? Yes, ma'am. सब कर सकते हैं. मुझे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मुझे अब वापस समझाने की जरूरत नहीं है. यूनिपोलर सिस्टम क्या होता है, बाइपोलर सिस्टम क्या होता है और मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है. अक्षिता, इज इट क्लियर फॉर यू? अक्षिता, अक्षिता, इज इट क्लियर? भाविका? Yes, ma'am. ओके अक्षिता. भाविका, आपको क्लियर हो गया? भाविका, Yes, ma'am. ओके. आपको क्लियर हो गए ना ये तीनों चीजें? Yes, ma'am. ओके. यस मुस्कान. thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out, the US became the sole superpower backed by the power and prestige of the US. The capitalist economy was now the dominant economic system internationally. Institutions like the World Bank and International Monetary Fund become powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. Yes. Now Bhumika. Ma'am, may Bhumika's I? point. Yes, Mannat, sure. Third, the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and choices. Some of them, especially the Baltic and East European states, want to join the European Union and became part of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US, China, and others. Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest, and economic political difficulties. It is to these issues that we now turn. Yes. Now
ये हमारा जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं. एंड ऑफ द आर्म्स रेस, रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक एंड इमर्जेंस ऑफ 15 न्यू कंट्रीज. चेंज ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम बाइपोलर टू यूनिपोलर. एंड लास्ट वन इज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. ये सारे पॉइंट्स किसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. इज इट क्लियर? मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? This heading is clear, this topic is clear. Yes or no में response तो कर दीजिए. यस मैम. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मीनाक्षी, खुशबू, कोई डाउट है इस टॉपिक पे? एक्सक्यूज मी मैम. यस उन्नति. मैम जब ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो मैम एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाया गया था, CIS. इसमें मैम यूएसएसआर के कुछ मतलब स्टेट्स ने है ना ज्वाइन किया था. ज्वाइन किया था. तो मैम ये फिर खत्म हो गया था या अभी भी है ये? नहीं नहीं, अब नहीं है उन्नति, अब नहीं है ये. अब तो केवल जो डिसइंटीग्रेट हुआ था तब उसके बाद से दोबारा से नहीं बने. वहां तक 4-5 साल तक चले थे ये ऑर्गेनाइजेशंस, फिर इन छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको बंद कर दिया गया. तो फिर मैम जो ये कॉमनवेल्थ के कुछ जो भी स्टेट्स थे जो इसमें आए थे फिर उन्होंने नाटो ज्वाइन कर ली. हाँ जी, ये लोग नेटो में शामिल हो गए थे. बिल्कुल. ओके मैम. Now we are coming on the next topic and that is also a very important topic. और ये हमेशा 6 marks का क्वेश्चन आता है. शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी, what do you mean by shock therapy? Do you know the meaning of shock therapy? थेरेपी का मतलब क्या होता है? थेरेपी वर्ड आपने यूज किया है, सुना है. What do you mean by therapy? मैम किसी चीज के लिए इलाज करते हैं जब वो किसी का ट्रीटमेंट करना. ओके फाइन. तो ये शॉक थेरेपी क्या यूएसएसआर का इन्होंने ट्रीटमेंट किया था? मैम इसने सोशलिस्ट सिस्टम को डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया था सबने. वेरी गुड, नाइस वन, नाइस वन नेहा, गुड. इसका मतलब नेहा ने चैप्टर पढ़ लिया. नेहा, चेतना, आप सबने चैप्टर पढ़ लिया है. आस्था, मन्नत, अगर बेटा आप लोग चैप्टर पढ़कर बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ शॉक थेरेपी क्या थी और उसके बाद हम इस पे चलेंगे. शॉक थेरेपी वाज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू द पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन to the socialist system to a democratic and capitalist system. शॉक थेरेपी वाज अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस था जिसमें क्या हुआ, जिसमें ट्रांजिशन कर दिया गया ऑथोरिटेरियन का. ऑथोरिटेरियन क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड ऑथोरिटेरियन? मैम इसमें मैम जो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट थी उनकी वो काफी ज्यादा करप्ट हो गई थी. उन्होंने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली. अपने हाथ में ले ली थी. मींस जो गवर्नमेंट होती है दे हैविंग अ एब्सोल्यूट पावर. अपने हाथ में उन्होंने क्या ले लिया था? एब्सोल्यूट पावर ले ली थी. इसलिए जो ऑथोरिटेरियन जो थे और जो सोशलिस्ट सिस्टम था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया. उसका ट्रांजिशन किसमें हो गया? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. यस. तो दिस इज नोन एज शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी का मतलब होता है किसी का ट्रॉमा ट्रीटमेंट करना, किसी को ट्रॉमा देके उसका ट्रीटमेंट करना. दैट इज नोन एज शॉक थेरेपी. इज इट क्लियर? ट्रॉमा ट्रीटमेंट समझ में आ गया? ओके. इस प्रोसेस के अंदर दिस प्रोसेस वाज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यहाँ आपको दिखाई गई है, 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें एक जो है वो वर्ल्ड बैंक को इंडिकेट कर रहा है और एक सिंबल जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दिखा रहा है. तो ये जो था प्रोसेस, इसके अंदर जो डायरेक्शन दिए गए वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू दिए गए. तो that was the known as the shock therapy. इसको हम किस नाम से जानते हैं? शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं. नाटो का जो, हाँ बेटा बोलो. इकोनॉमिक ट्रांजिशन था ना? बिल्कुल, ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन था. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इकोनॉमिक ट्रांजिशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया था. यस चेतना? यस मैम. ओके फाइन. तो अब हम स्टार्ट करें पढ़ना, इसको रीड करना स्टार्ट करें. हु वांट्स टू बी रीड इट? नहीं. नेहा, नेहा
हाँ सानिया, Institutions, जस्ट वेट, एक बार नेहा को पढ़ने तो फिर आपको देती हूँ नेहा के बाद। institutions like World Bank and International Monetary Fund become powerful advisors. Emergence of many new countries, some of them, especially the Baltic and East European states, want to join the European Union and become the part of NATO. Adopt the concept of the shock therapy. यहाँ से शॉक थेरेपी का कंसेप्ट जो था वो स्टार्ट हो गया। फाइन, स्टार्ट करो नेहा। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। Shock therapy in post-communist regime. Shock therapy was a नेहा 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 नेहा, yes, बुक में से ma'am. स्टार्ट करो, पेज नंबर 24। Okay, ma'am. The collapse of communism was followed in most of these countries by painful process of transition from authoritarian socialist system to democratic capitalist system. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to known as shock therapy. Please underline this paragraph. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. Shock therapy varied in intensity and the speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting a completely any structures evolved during the Soviet period. Above all, it meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets and cooperative ownership patterns were to immediately brought in. Selective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. This transition ruled out any alternate or third way other than state-controlled socialism or capitalism. Yes, Shock that therapy- was the शॉक थेरेपी इन्वॉल्व। कि शॉक थेरेपी कहाँ पर इन्वॉल्व थी, कैसा था, कैसी थी शॉक थेरेपी, उसमें क्या हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट जो भी नेहा ने बताया, दैट वाज अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जो प्राइवेट फर्म्स थी, जो सेकंड पॉइंट जो नेहा ने बोला कि प्राइवेट फर्म्स जो थी वो इमर्जेंस कर दी गई। द प्राइवेट फर्म्स इमर्जेंस एंड कंप्लीट स्विच ओवर टू द फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम किस में कन्वर्ट हो गए? हमारा जो पूरा ट्रेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें यही बताया हुआ है कि जो शॉक थेरेपी थी उसके अंदर जितना भी फ्री ट्रेड वर्क था, जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो स्टार्ट हो गया। यस सुहानी, page number 25. Yes, ma'am. Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economics. Development was now envisages through more trade, and the sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment (FDI) were to be main engine of change. This also involved openness to foreign investment, financial opening up or deregulations and currencies convertibility. Finally, the transaction also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist state now become the leaders and thus guided and control the development of the region through various agencies and organizations. बिल्कुल, शॉक थेरेपी जो इन्वॉल्व, उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो गया? प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, प्राइवेट फर्म्स इमर्जेंस हो गई, और साथ साथ में जो कंप्लीट जो स्विच ओवर था, जो फ्री ट्रेड जो था उसका पूरा कंप्लीटली स्विच ओवर हो गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। फाइनेंशियल जो था दैट वाज ओपन एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होने लगी एंड द ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक टू मेंटेन द रिलेशंस डायरेक्टली विद द वेस्ट। उन्होंने डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिए? वेस्ट के साथ। ये किसके, अब ये चीजें जो थी वो हमें कहाँ देखने को मिल रही थी? दैट ट्रीटमेंट इज नोन एज द शॉक थेरेपी। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तब ये ट्रीटमेंट हमें देखने को मिला एज अ शॉक थेरेपी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? चेतना, याशिका,
विकास, सबको क्लियर हो गई शॉक थेरेपी बेटा? Yes, ma'am. थेरेपी का मतलब क्या होता है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाए, जिसमें ट्रांजिशन कर दिया जाता है ऑथोरिटेरियन का, किसमें ट्रांजिशन किया कर दिया जाता है, सोशलिस्ट सिस्टम, सॉरी कैपिटलिज्म में उसका ट्रांजिशन कर दिया गया। उसमें जो एब्सोल्यूट पावर थी गवर्नमेंट की, उसको किसके हाथ में दे दिया गया? कैपिटलिस्ट सिस्टम के हाथ में दे दिया गया। इस सिस्टम को, इस शॉक थेरेपी को हम ट्रॉमा ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एंड दैट वाज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज नोन एज IMF. अक्षिता, अक्षिता वर्मा, अक्षिता वर्मा, भूमिका चौहान, सॉरी भूमिका आसवानी, भूमिका आसवानी, खुशबू, खुशबू इस स्लाइड जो आपको सामने दिखाई दे रही है इसको रीड करो। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. खुशबू रीड कीजिए। मुझे लगता है आप लोग कैमरा ऑन करके और यहाँ से चले, कैमरा भी ऑन नहीं है, एक भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है। रिया, 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 मैं आप लोगों को इस चीज से अवेयर कर देती हूँ बेटा कि मैं आपको ये टॉपिक दोबारा नहीं समझाने वाली। अगर आप लोगों को करना है, अभी समझना है, इट्स ओके, नहीं समझना है मत समझिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। भूमिका, खुशबू, आप लोग यदि, रिया, यदि आप रेस्पॉन्स नहीं देते, इट मीन्स मैं यही समझूंगी यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। फाइन, मत बताइए। विकास, विकास ऑडिबल नहीं है। कौन बचेगा? मीनाक्षी, आर यू देयर? मीनाक्षी शर्मा, Yes, ma'am. रीड इट, ये स्लाइड रीड Yes, करिए। ma'am. Shock therapy was a painful process of transition from of authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. This transformation system was influenced by the World Bank and the IMF in Russia, Central Asia, and East Europe. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. Now we are coming on the consequences of shock therapy. Shock therapy के consequences क्या रहे? Fine. Now Yes, just read first it, read it from your book. yes, ma'am. Who wants to be read? उन्नति? Yes, ma'am. May I? हाँ सानिया, सानिया के बाद उन्नति। ओके, चलिए सानिया स्टार्ट कीजिए। Yes, ma'am. The shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region. In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed, as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. Since the restructuring was carried out through market forces, not by government-directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. This was called the largest garbage sale in history, as valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices. Though इसको all अंडरलाइन कर लीजिएगा सानिया, जस्ट स्टॉप बेटा, आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। इसको क्या कहा गया? लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। किसको कहा गया? क्या थी ये लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री? किसे कहा गया? मैम, जो पहले यूएसएसआर की इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के थ्रू ओन की जाती थी, तो मैम उसकी नीलामी की गई
और उस टाइम पे मैम जो बाकी जो कंट्रीज थे और बाकी जो लोग थे वो इतने काफी इकोनॉमिकली अच्छे नहीं थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो रिच पीपल थे वो मिडिल क्लास हो गए, जो मिडिल क्लास थे वो पुअर हो गए, और जो पुअर थे वो उससे भी ज्यादा पुअर हो गए। तो मैम जो रिच पीपल्स थे उन्होंने पैसे लगा के कम रेट में, क्योंकि और कोई लेने वाला था नहीं, तो इसलिए मैम उन्होंने वो इंडस्ट्रीज खुद के लिए ओन कर ली। वेरी गुड, नाइस वन। यस Anya. Yes, ma'am. Though all citizens were given vouchers to participate in the sales, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. The value of the ruble, the Russian currency, declined dramatically. The rate of inflation was so high that people lost all their savings. The I collective think farm inflation system. के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं inflation. What do you mean by inflation? Who knows about inflation? Just raise your hand. मैम महंगाई बढ़ना. Rise in the prices of goods. Very good, nice one. चलिए आगे. Sania. Yes, ma'am. The rate of inflation was so high that people lost all their savings. The collective farm system disintegrated, leaving people without food security. Russia started to import food. The real GDP of Russia in 1999 was below what it was in 1989. The old trading structure broke down with no alternative in its place. The Yes, old now system. Unnati. Yes, ma'am. The old system of social welfare was systematically destroyed. The withdrawal of government subsidies pushed large sections of the people into poverty. The middle class were pushed into the periphery of society, and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated. A mafia emerged in most of the countries and started controlling many economic activities. Privatization led to new disparities. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं एक साथ समझा देती हूँ. Okay, ma'am. The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demand of economic transformation. The constitution of all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible power that rendered elected parliament relatively weak. In the Central Asia, the president have great power, and several of them became very authoritarian. For example, the president of Turkmenistan and Uzbekistan appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. They allow no dissent or opposition. A judicial culture and independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. Most of these economic, especially Russia, started reviving in 2000. Then years after their independence, the reason for the revival for most of their economies was the export of national resources like oil, natural gas, and minerals. Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan are major oil and gas producers. Other countries have gained because of the oil pipeline that cross their territories from which they get rent. Some amount of manufacturing has restarted. Yes, now first of all we will talk about the consequences of shock therapy. Consequences क्या रहे shock therapy के? सबसे पहला consequence क्या रहा कि जो Russian industrial जो structure था वो पूरी तरह से collapse हो गया. Total collapse of Russian industrial structure. Second, Russian currency जो रूबल थी उसको क्या कर दिया गया, उसको डिक्लाइन कर दिया गया, यानी जो उसके प्राइसेस जो उसके राइस प्राइसेस थे धीरे धीरे वो क्या होते गए, कम होते गए. तो जो उनकी परचेसिंग पावर थी वो क्या हो गई, रूबल की परचेसिंग पावर क्या हो गई, बहुत कम हो गई. Destroyed old social welfare system. पूरी तरह से social welfare system जो था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, destroy कर दिया गया. ये सबसे बड़ा shock therapy का consequence था.
डिस्पैरिटीज दिखाई देने लगी किस किस के बीच में, रिच लोगों के बीच में और पुअर पीपल्स के बीच में। जो रिच पीपल थे वो बहुत ज्यादा रिच हो गए और जो पुअर पीपल थे वो बहुत ज्यादा पुअर हो गए। तो ये जो डिस्पैरिटीज थी ये भी किसका कॉन्सिक्वेंस था, शॉक थेरेपी का। इसके अलावा माफिया क्लास का क्या हो गया, इमरजेंस हो गया, इमरजेंस ऑफ माफिया क्लास। माफिया क्लास क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय माफिया क्लास? यहाँ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं माफिया, व्हाट डू यू मीन बाय माफिया? माफिया लोग कौन होते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं? हम गैंगस्टर। गैंगस्टर होते हैं? नहीं, माफिया लोग वो होते हैं जो अपने कंट्रोल में सारी चीजें कर लेते हैं, जिनके जो पैसा जो है, इकोनॉमिकली जो कंडीशन होती है वो उनके कंट्रोल में आ जाती है, दैट इज नोन एज माफिया। तो यहाँ पर जो माफिया क्लास थी उसका इमरजेंस हो गया, लोगों के हाथ में अब पैसा आने लगा। पहले जो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी चल रही थी उसमें सब कुछ किसके हाथ में था, स्टेट के हाथ में था। लेकिन जब धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होने लगी, धीरे धीरे पैसा जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में आने लगा, जो रिच पीपल थे उनके हाथ में ज्यादा जाने लगा, वो ज्यादा अमीर हो गए। तो वही क्लास जो थी, जो रिच पीपल की क्लास थी, वो धीरे धीरे कौन सी क्लास में कन्वर्ट होने लगी, माफिया क्लास में कन्वर्ट होने लगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, इवन जो बैंक्स थे, 1500 बैंक्स जो थे वो क्या हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए। और जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, जो पहले क्या था, जो पहले चीजों को प्रायोरिटी दी जाती थी वो सारी प्रायोरिटीज जो थी वो खत्म हो गई। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद वीक पार्लियामेंट एंड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। और इसको हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गैरेज सेल कहा गया, हिस्ट्री की सबसे गैरेज सेल, लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा गया। 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको कम प्राइसेस में क्या कर दिया गया, सेल आउट कर दिया गया। यानी इनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई, इतनी वर्स्ट हो गई, जो इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी, उनमें से जो 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको बिना किसी प्राइस को सोचे समझे उनको सेल आउट कर दिया गया। यानी इसीलिए इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहा जाता है। लोग जो थे, एजुकेटेड जो लोग थे, वो माइग्रेट करने लगे। कहाँ से? लोग जो थे वो रशिया से माइग्रेट करके यूएसए में जाने लगे, वेस्ट कंट्रीज में जाने लगे। और जो इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थी, जो इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। फूड सिक्योरिटी जो था दैट वाज अबॉलिश्ड एंड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन फूड वाज इंपोर्टेड। और इन्फ्लेमेशन आने की वजह से फूड जो सिक्योरिटी थी उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया और फूड को इंपोर्ट किया गया अदर कंट्री से। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमें शॉक थेरेपी में देखने को मिलते हैं। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। पक्का सबको समझ में आ गया? मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही, डोंट वरी, मैं यहीं स्टॉप करूंगी इसको, डोंट वरी। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। यानी अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है उसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं बाइपोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, बर्लिन वॉल क्या थी, इसके बाद हमने बात की सोवियत यूनियन, सोवियत सिस्टम क्या था या सोवियत यूनियन सिस्टम क्या था। इसके बाद हमने बात की कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेट होने के कारण क्या क्या रहे। इसके अलावा हमने बात की मिखेल गोर्बाचेव की, हु वाज द मिखेल गोर्बाचेव एंड व्हाट वाज हिज रिफॉर्म पॉलिसी। इसके बाद हमने बात की किस चीज की, सबसे इंपॉर्टेंट शॉक थेरेपी, सॉरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और इसके बाद हमने शॉक थेरेपी की बात की। यहाँ तक हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी। उनको पढ़ाने के लिए उससे पहले मुझे आपसे ये कंफर्म करना है कि क्या आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। कोई किसी भी तरह का यदि कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इज इट क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि नहीं करनी है, बता दीजिए। यू वांट टू बी? नेशन बिल्डिंग वाले के आंसर तो भेजे ही नहीं आपने अभी तक भी। टाइम भी नहीं मिला है चेतना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं जरूर आपको लिख के दूंगी। मेरे पास लिखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं सेव किए हुए आपके क्वेश्चंस। डोंट वरी, एक्चुअली उनको लिखने का बस 10 मिनट का टाइम चाहिए मुझे, और वो मुझे भी मिल नहीं पा रहा है। सॉरी आस्था।
मैम जो आपने थर्ड चैप्टर मतलब मैम जो कटा है उसमें से कुछ टॉपिक्स आएंगे वो मैम आप इसी में ऐड करके बताओगे आप हमें? हाँ 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 बिल्कुल, वो जो हैं टॉपिक्स वो मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। ओके मैम। ठीक है आस्था। ओके स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, ओके बाय। और आप आगे का जो चैप्टर है वो रीड कर आएंगे, और उसमें और कौन कौन से टॉपिक उसमें मर्ज है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। फाइन। और क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ है वो मैं आज ही सेंड करने की कोशिश करूंगी, तो आप उसको लिख लीजिएगा। फाइन, ओके बाय, टेक Thank केयर। you, मैम। बाय मैम। बाय। याशिका, behave yourself.